Good morning, students of class 9th, Kappa International School. Welcome to the new session 21-22. Today it is an introductory class of the subject English. I am Preeti Sharma. I am going to take your English classes from today. Hope you all are safe at your homes. Today I am going to give a brief introduction about your subject English. This year you are new to high school. You have 2 books of English subject. One is your Beehive textbook and other one is your Movement supplementary reader textbook. Okay? And this year your syllabus has been divided into 2 terms. Term wise it has been divided, first term and second term. So today I am just going to give you the brief lecture on the basic knowledge which you have in your previous classes. The basic grammar lecture I am going to give you today. Just a basic general, you can say a general talking of the grammar class today I am going to have with you all. So the main basic thing about the grammar you all are familiar with is the tenses. So you may know what are tenses. Tenses, what are the tense? How many types of tenses you have learned in your previous classes? It's just a revision in this lecture today. So tenses are the thing which we are doing. It's just an action doing thing, a verb which is an action doing thing. Okay. So the verb जो क्रिया है ना, ये आज का जो लेक्चर है बिल्कुल एक बेसिक इंग्लिश लेक्चर है जो बेसिक आपको ग्रामर से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा और होप आप लोगों को ये जो है कॉन्वर्जेसन 2-वे कॉन्वर्जेसन में आपके साथ करूँगी हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप कन्वीनियंट रहेंगे. तो हम बेसिक आज जो पढ़ेंगे जो आज की क्लास में है वो है ग्रामर के ऊपर, जो है मेन ग्रामर लेसन जो है टेंस. टेंस इज़ द बेसिक नीव ऑफ एनी ग्रामर. सो टेंस, you all are familiar about tense. What is a tense? Do you all know what is a tense? So tense is basically related with verbs. हम जो एक्शंस करते हैं, जो रोज़ जो भी एक्टिविटीज़ हमारे साथ होती हैं, आज हुई हैं, जो कल हुई थी या कल होने वाली हैं, ये टेंस इसी को कहते हैं. ये काल है हिंदी में और ये 3 प्रकार के होते हैं. टेंस आर ऑफ 3 काइंड्स: present, past and future. Now I am just delivering a lecture. This is a present moment. Yesterday you were at your homes and what you were doing was the past, and what tomorrow I am going to teach is the future. Okay, this is the normal, in normal language we can say that we are just going to read about this. So what is tense? Tense are mainly of 3 types. Basically the present form, present tense, the past tense and the future tense. They all are categorized in 4 subdivisions: present simple, present continuous, present perfect continuous. We are just talking about the present tense. As it similarly in the past also they are divided in the 4 sections: past simple, past continuous, past perfect continuous. And the same is for the future tense: future simple, future continuous, future perfect continuous tense. Today this is just a basic thing which we are going to discuss is the present simple form of the tense. The first form of the verb is used as present tense, that is simple. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वर्ब, हमेशा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वर्ब के बारे में, है ना. मैं बोल रही हूँ, टॉक इज ऑल्सो वर्ब. टॉकिंग, सिंगिंग, ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग, स्टैंडिंग, एनी एक्शन वी डू इज द वर्ब. सो दीज वर्ब आर जस्ट गोइंग टू with the verbs you can identify what type of tense you are dealing with. What is the tense actually is in which form. By identifying the verb you can identify the form of tense. So today we are just going to have a simple conversation or simple talking of my way of talking is about your basic verb form, that is present simple. First base verb is used in
simple form of the present tense. The first form of the verb is used as present tense. In fact, this tense does not describe the action that is taking place. यहाँ पे जो present simple की हम बात करते हैं उसमें ये नहीं कि जो चल रहा है, जैसे कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, है ना, I am just giving a lectures. This is the thing which is कंटिन्यूस है. मैं आपके साथ मैं क्या कर रही हूँ अभी आपके सामने कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है. प्रेजेंट सिंपल किस कैटेगरी के अंदर आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस वो है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैबिचुअल और यूजुअल एक्ट्स और जनरल एंड परमानेंट स्टेटमेंट, जो यूजुअली परमानेंटली होता है और होता आ रहा है. हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअली हम जो रोज़ करते हैं, है ना, वो प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में आता है. इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल आइडेंटिफाई करते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है, ये सिंगुलर पर्सन में एंड होता है. और जब सिंगुलर पर्सन की बात होती है यहाँ पर सिंगुलर में एंड होता है, थर्ड पर्सन में एंड होता है. इफ़ दिस टेंस इज यूज्ड बाय द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स, इट ऑल्सो ऑलवेज हैव द वर्ड एस और ईएस विद द वर्ब, है ना. ये नॉर्मल आपने भी पढ़ा होगा जब प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम वर्ब फॉर्म में थर्ड पर्सन के साथ जब हम वर्ब ऐड करते हैं, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम के साथ अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम एस या ईएस को ऐड करते हैं. बाकी हमेशा बेस फॉर्म जो वर्ब है, जैसे कि ईट है तो ईट में ही रहेगा वो वर्ब, उसमें कोई एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं होगी, मगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम उसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं. तो ये सिंपल, यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं. जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आते हैं, जो चल रहे हैं वो एक्टिविटी प्रेजेंट सिंपल में नहीं आती है. जो हैबिचुअल एक्शंस है, परमानेंट यूजुअल जो एक्शंस हैं, जो हमेशा होती है, जनरल में होती ही रहती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल के कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मदर वर्क्स इन द किचन इन द मॉर्निंग, मतलब माँ जो है रोज़ सुबह किचन में काम करती है ना, ये प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में आ जाएगा. इसमें जो है मदर सब्जेक्ट है यहाँ पर, और वर्क, देखो मदर पर्टिकुलरली किसी के बारे में बोला जा रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में, तो यहाँ वर्क के साथ एस लगाया, मदर वर्क्स इन द किचन इन द मॉर्निंग, है ना, ये प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में आ गया. ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाता है, तो ही के साथ गोज़ वर्ड ऐड किया है, तो यहाँ पर जियो गो जो वर्ब है, बेस वर्ब है, उसके साथ हमने एस या ई एस के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे वोवल साउंडिंग है और उसके साथ हमने ई एस ऐड किया. इसको हम और एलॉबरेटली आराम से हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब मैं जनरल आपको उसको कनेक्ट करना चाहती हूँ, आपको एक बेसिक रूटीन में लाना चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यूएशन में करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा उससे कनेक्ट हो जाएं. इसलिए आज का ये लेक्चर उसके बेस पे है. ये जो हैबिचुअल एक्शंस है कि वो रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, ये हैबिचुअल एक्शन है, ये प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में आता है. और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा कि अर्थ जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है. ये फैक्ट है, कोई चेंज नहीं कर सकता. यहाँ पे अर्थ है, इसलिए यहाँ पे रिवॉल्व्स अराउंड द सन लिखा हुआ है ना. तो ये आज का जो लेक्चर है जनरल, आपको एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश है कि टेंस क्या है, हम बेसिक इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे. आपके जो प्रीवियस जो ग्रामर आपने पढ़ी है उसको आप थोड़ा रिकॉल कर लें, थोड़ा सा उसको स्टडी करें और प्रिपेयर हो जाएं नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, ताकि आप हम आगे इजीली कन्वीनियंटली बोर्ड लर्निंग के साथ बोर्ड पर पूरे एलॉबरेटली डिस्क्राइब करते हुए मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टेंस के फॉर्म्स, फर्स्ट बेस वर्ब से यानी बेसिक वर्ब फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे और टेंस को उसको कोरिलेट करते हुए हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. थैंक यू.